ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 3rd ਯੂਨਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ +1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3rd ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3rd ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 1st 2nd 4th ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਂ 3rd ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3rd ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 50 MCQ ਕਰਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 1st ਵੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ YouTube 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ। ਤੋਂ ਅਗਰ MCQ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ 7 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। SPD ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਬਲੋਕ ਦੀ, NS1 ਔਰ NS2, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ N is any number 1 2 3 4 or so on. In case of alkaline earth metals, तो N is start from 2 because beryllium, ठीक है जी। beryllium तो बाद magnesium, तो beryllium has configuration outermost configuration 2s2, then so on, number increase ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स पढ़ने। अटोमिक रेडियस जनरली लैफ्ट टू राइट डिक्रीज़ करदा। डिक्रीज़ इस करके करदा क्योंकि अपने को सेम शैल 'ਚ इलैक्ट्रॉन ऐड होंदे रहंदे आ। नो डाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ਜਿਹੜਾ इनक्रीज़ ਹੁੰਦਾ, मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इनक्रीज़ होण ਨਾਲ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इनक्रीज़ ਹੁੰਦਾ। बट शैल सेम शैल 'ਚ इलैक्ट्रॉन होण करके ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ रेडियाई डिक्रीज़ हो ਜਾਂਦਾ, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप ਜਿਹੜਾ अटोमिक रेडियाई ਆ ਉਹ इनक्रीज़ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ 2s2 ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ 3s2। ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਜਨਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। तो लैफ्ट टू राइट इलैक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होंदी है, तो लैफ्ट टू राइट मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज़। और डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी वधदी है, इंक्रीज़ होंदी है, बिकॉज साइज़ जिन्ना ज़्यादा होगा उन्नी ईजिली इलैक्ट्रॉन बाहर जाएगा। दैट्स वाई अगर इलैक्ट्रॉन जल्दी बाहर जा रहा तो वो ज़्यादा मैटैलिक करैक्टर शो करनगियां। नॉन मैटैलिक करैक्टर इज़ रिवर्स ऑफ मैटैलिक बिहेवियर।
नेक्स्ट आयनिक रेडियस मतलब एक केटायन अनायन। ठीक है जी, हमेशा याद रखना कि जिहड़ा पेरेंट एटम का साइज़ जिहड़ा हुंदा वो हमेशा ज़्यादा होगा केटायन नालों अगर इलैक्ट्रॉन लॉस कीते हैं, और घट होएगा अनायन नालों। ठीक है जी, तो ये बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होंदियां, आइसो मतलब सेम, इलैक्ट्रॉनिक मतलब इलैक्ट्रॉन जिन्हां च सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होण। ठीक है, तो मोर इज़ दी चार्ज ऑन ऑफ अनायन, मोर इज़ दी साइज। जिन्ना ज़्यादा नैगेटिव चार्ज उन्ना ज़्यादा साइज़ होएगा अनायन का, जिन्ना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उन्ना घट साइज़ होगा। ग्रेटर दी पॉजिटिव चार्ज लोअर दी साइज, ग्रेटर दी नैगेटिव चार्ज, ठीक है, लैसर दी लोअर विल बी दी साइज। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर दी नैगेटिव चार्ज ग्रेटर विल बी दी साइज। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंदी है कि अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनया है तो कोवलेंट बॉन्ड चो अपने वाल इलैक्ट्रॉन खिंचण दी दोने इलैक्ट्रॉन लैके जाण दी टेंडेंसी नूं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी बोलते हैं। लैफ्ट टू राइट ये इनक्रीज़ कर दी है बिकॉज इलैक्ट्रॉन लैण दी टेंडेंसी इनक्रीज़ कर दी है, बिकॉज वेलेंस शैल नूं कंप्लीट करन दी रिक्वायरमेंट घट जाती है। रिक्वायरमेंट मतलब वेलेंस शैल नूं कंप्लीट करन लई घट इलैक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं कंपेयर करना होवे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये होंगे 7, ये होंगे 5 वेलेंस शैल, ये होंगे 6, ये होंगे 7, तो इनू 3 इलैक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलैक्ट्रॉन मुश्किल होंगे। ठीक है, इनू 2 चाहिए, इनू 1 चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी अपने वाले इलैक्ट्रॉन खिंच लेंदा है, तो इस करके लैफ्ट टू राइट इनक्रीज़ कर दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर दी है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लैफ्ट टू राइट इनक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। नैगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ईजीली इलैक्ट्रॉन ऐड हो जाए। जिन्ना ज़्यादा अपने को, तो नेक्स्ट इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, मोर अट्रैक्शन, तो जिन्ना ज़्यादा न्यूक्लियस से चार्ज होएगा न्यूक्लियस अपने वाल ज़्यादा इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, मतलब ईजीली इलैक्ट्रॉन ऐड करवाएगा। दैट्स वाई हुण एक एक्सैप्शन होंदी है क्लोरीन का इलैक्ट्रॉन गेन डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटदी है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन नालों, बट अनएक्सपैक्टडली जिहड़ा क्लोरीन की ज़्यादा होंदी है फ्लोरीन नालों। रीजन इज़ दैट फ्लोरीन च 7 इलैक्ट्रॉन ने, तो 7 इलैक्ट्रॉन मतलब अगर इनकमिंग एक होर इलैक्ट्रॉन होना तो वो रिपल्शन फील होएगी। रिपल्शन फील होने करके की होगा, ये ईजिली इलैक्ट्रॉन ऐड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो रीजन इज़ दैट। इलैक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि जिन्ना अपने को एंथैल्पी एडिशन ऑफ एन इलैक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड कितनी ज़्यादा होंगी है, तो लैफ्ट टू राइट ये इनक्रीज़ कर दी है। जिनी जल्दी इलैक्ट्रॉन ऐड होएगा उन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन एफिनिटी होएगी। स्क्रीनिंग इफैक्ट की होंदा है कि जिमें कोई आह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आह ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तो बाद आह वेलेंस ऑर्बिटल है। तो अगर आह वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चार्ज नूं कंप्लीटली शील्ड कर लवे तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहरले शैल तक घट पहुँचेगा, जिहदे करके की होगा इलैक्ट्रॉन लूजली पैकड हो जाएंगे। लूजली अगर पैकड होणगे तो घट आयोनाइजेशन एनर्जी लगनी है इनू बाहर कड्ढण लई। ठीक है, दैट्स वाई आपां कहंदे आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफैक्ट। ठीक है, तो डायगनल रिलेशनशिप इज़ दी कि सैकेंड पीरियड के एलीमेंट दी प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलदियाँ, दैट्स वाई ये नैक्सट दे सैकेंड एलीमेंट ना डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो आ ट्रेंड्स ने, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलीमेंट्स इलैक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन फिल करने 1s2 2s2 2p वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 1 is s block, ठीक है, 2 is also s block element because last electron entered through s orbital. Arrangement of known elements according to their properties in a tabular form. Tabular form मतलब टेबल की फॉर्म च अरेंज करना, दैट इज पीरियोडिक टेबल। टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलीमेंट टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर हुणे करवाया। अगर कोवलेंट बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंचे जान तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलैक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज,
तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो ओबवियसली जिन्ना ज़्यादा चार्ज उन्ना साइज़ घट, तो ये कैंसल हो गया, ये भी चार्ज वाला, ये कैंसल हो गया। हुण दोनों चों ये न्यूट्रल आ, लैफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज करदा, दैट मीन सोडियम का ज़्यादा होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ किन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन आ? 6 किहदे च हुंदे? ऑक्सीजन फैमिली च। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 21 एटॉमिक नंबर, दैट इज स्कैंडियम। हॉरिजोंटल रो इज दीज रोज, इन्होंने हॉरिजोंटल रोज कहते हैं, उन्होंने आप पीरियड बोलते हैं। हाउ मैनी पीरियड? 7 पीरियड। वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। हाउ मैनी ग्रुप्स आर इन द पीरियोडिक टेबल? 18। तो जनरल जो क्वेश्चन है तो पता ही होना। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर टुगेदर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना एस और पी आर रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक। डी नू इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहते हैं और एफ नू इनर ट्रांजिशन बोलिया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रजेंटेटिव? एस एंड पी, हुणे दस्सिया, ठीक है जी। वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वन हाफ, मतलब जिमें सर्कल आ, ਇਹਦਾ आ पूरा डिस्टेंस आ तो ਇਹਦਾ हाफ कर दिए, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो उन्होंने आप 2 कोवलेंट है ना, कोवलेंट आ गया तो कोवलेंट रेडियस होएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रेडियस टू द आउटर मोस्ट शैल, हाँ न्यूक्लियस आ, एक तो आउटर मोस्ट शैल का डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस एटम। विच इज मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट? वी नो लैफ्ट टू राइट इनक्रीज। याद रखियो 3 मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फोन, ठीक है, तो फोन च एफ पहला होता, सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव ये, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द आंसर। नेम द एलिमेंट बिलोंग टू एफ ब्लॉक। ब्रोमीन इज पी ब्लॉक, नियोन इज पी ब्लॉक, जिंक इज डी ब्लॉक, सीरियम। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑलरेडी फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होंगी है, तो वो इलैक्ट्रॉन ऐड कराने मुश्किल है, तो एनर्जी आपां नूं देनी पैंदी है इलैक्ट्रॉन ऐड कराने लई, वैसे होंगे तो नहीं। एलीमेंट हैविंग लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब तो रिड्यूसिंग, पहला मतलब समझो रिड्यूसिंग एजेंट की होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिहड़े दूसरे की रिडक्शन करन, रिडक्शन मतलब होंदा लॉस ऑफ गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे की रिडक्शन करानी, अपनी ऑक्सीडेशन करानी, ऑक्सीडेशन होंदा लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो अगर किसी की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वो ईजिली इलैक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दैट्स वाई दे बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। विच इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? दैट इज सीजियम। विच एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट इन सैकेंड पीरियड? सैकेंड पीरियड अपने को हैगा आ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लैफ्ट टू राइट साइज जिहड़ा हुंदा वो डिक्रीज करदा, तो लैफ्ट टू राइट साइज अगर डिक्रीज करदा, लीस्ट से फ्लोरीन आ रहा, फ्लोरीन। फैक्टर्स विच अफैक्ट दी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सारे ही इफैक्ट करते, हुणे पढ़िया आपां ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल च हुण आपां ने मतलब जिहड़ा हैनरी मोसले सीगा उन्हें अरेंज कीता सीगा एलीमेंट्स नूं इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर, ठीक है जी। तो अटोमिक नंबर इज द आंसर। ग्रुप 18 नूं आपां नोबल गैसेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट ऑर्डर ऑफ अटोमिक रेडियाई? लैफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, मतलब फ्लोरीन का सब तो घट, फिर ऑक्सीजन का उस तो ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन। तो आप बेसिकली कह सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑप्शन इज दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज वाइल मूविंग ऑन डाउन द ग्रुप? अटोमिक रेडी डिक्रीज, मेटैलिक करैक्टर डिक्रीज, नंबर ऑफ शैल इन दी एटम, नंबर ऑफ शैल जिहड़े आ वो भी इनक्रीज करते डाउन द ग्रुप, बट वेलेंस इलैक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जिमें NS1 एक ही वेलेंस इलैक्ट्रॉन है, NS2 एक ही दो वेलेंस इलैक्ट्रॉन वो सेम रहते हैं। करैक्ट ऑर्डर फॉर साइज हुणे आपां करके हटे हैं, कैटायन का सब तो छोटा, फिर पेरेंट,
ठीक है। फिर अनायन, तो CPA, ठीक है, CPA। तो इन करैक्ट ऑर्डर आई दा सब तो ज़्यादा, फिर पेरेंट, दैन ਉਹ अपने को सेम वैल्यू है n दियाँ। तो पेनेट्रेशन पावर मतलब n आप 3 ले लेंगे, तो 3s 3p 3d 3f तो होंगे नहीं, तो 4s 4p 4d एंड 4f। तो याद रखियो s की हमेशा पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होंगी है ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, ठीक है। इस करके s सब तो ज़्यादा पेनेट्रेट करेगा न्यूक्लियस के अंदर, दैन p दैन d फिर f। सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किहदी ज़्यादा होएगी? सैकेंड मतलब जिमें आही लै लो, ठीक है। पहला 3s1 1 चो 1 इलैक्ट्रॉन कड्ढता, ये पहली लग गई। एक इलैक्ट्रॉन कड्ढन तो बाद कन्फिगरेशन की बची ਇਹਦੀ 2p6, ਇਹਦੀ 2s2, ਇਹਦੀ 2s2, ਇਹਦੀ 2p6, सॉरी ਇਹਦੀ 3s1, ठीक है। तो 2p6 इज़ दी फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, नो डाउट। ਇਹਦੀ की बचूगी, सॉरी ਇਹਦੀ 2p4 बचेगी, ਇਹਦੀ 2p5 बचेगी, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन कड्ढन तो बाद, तो ਇਹਦੀ 2p6 फुली फिल्ड बचती भी है, इस करके ਇਹਦੀ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी सैकेंड। टेंडेंसी तुसी जो चैप्टर पढ़ते हो तुसी हमेशा ये पढ़ते हो कि डी ब्लॉक एलीमेंट्स फॉर्म कंपलैक्स कंपाउंड, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। +2 जो थानू पूरा चैप्टर आ, तो डी ब्लॉक एलीमेंट ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलैक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली वैलेंसी के वांगू ही होंगी है, ठीक है। इस करके डी ब्लॉक एलीमेंट्स रेगुलरली इनक्रीज डाउन द ग्रुप इनक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रेगुलर मतलब जिहड़ा हुंदा रिड्यूसिंग नेचर इनक्रीज करता, रिड्यूसिंग नेचर मतलब लॉस करने की टेंडेंसी, इलैक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। फैमिली विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। सॉरी इत्थे इनक्रीजेज ही दस्या ना, हाँ जी। तो इलैक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर दी, ये भी डिक्रीज कर दी, ये भी डिक्रीज, इलैक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो हैलोजन और नोबल गैसेस जिहड़ियां लीस्ट ते होंदियां 18वां ग्रुप, तो यदी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। वैसे भी यदी स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होंदी है NS2 NP6। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मतलब अलग अलग बॉन्ड बनाने की वैलेंसी, Fe जिहड़ा हुंदा वो 2 पॉजिटिव भी हुंदा, 3 पॉजिटिव भी हुंदा। As we move from nitrogen to bismuth, that is down the group, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो मैटैलिक प्रॉपर्टी जिहड़ियां हुंदियां वो इनक्रीज करदियां, ये नॉन मैटल्स, ये मैटालॉइड, ये मैटल्स। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफैक्ट भी एस का ज़्यादा ही हुंदा, ठीक है, क्योंकि ये चंगी तरह शील्ड करता ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, तो आप डायरैक्ट ही इद्दां लिखते हैं, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिन्ना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन्ना घट साइज, ठीक है जी। As compared to nitrogen, oxygen is more electronegative than nitrogen because we know fluorine, oxygen and nitrogen electronegativity trend or more reactive. The most basic मतलब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेगा, तो डाउन द ग्रुप जिहड़ी है इलेक्ट्रॉन, सो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है। इलैक्ट्रॉन अपने को मोस्ट बेसिक एलीमेंट होंदा आयोडीन, सॉरी बेसिक इज़ दैट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन अपने को लॉस करेगा, ठीक है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलीमेंट इज सेम, जिन्ना नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब प्रिंसीपल क्वांटम नंबर लिखते हैं, एंड जिमें के अगर के शैल च ही इलैक्ट्रॉन आ मतलब फर्स्ट पीरियड, अगर एल शैल च फिल होने शुरू हो गए, ये भर गया, ये रह गया, एच होने शुरू हो गए 2 सैकेंड पीरियड, एम च होने शुरू हो गए 3rd पीरियड, इस तरह फाइंड करते हैं।
ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 284, तो कितने शैल ने 3 शैल। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 14, तो 10 + 4 इज़ 14, तो 14 ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17? ओबवियसली जिहड़ा ग्रुप 17 ओके आउट ऑफ फॉलोइंग दसना, तो फॉलोइंग च तां क्लोरीन आएगा। वैसे फ्लोरीन हुंदा ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲਸ? ਡੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ 3 ਤੋਂ 12 ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2p ਫਿਲਡ ਸਬਸ਼ੈਲ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 2s ਹੁੰਦਾ, 2s2, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2s2, 2p6, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2s1, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2s2, 2p1। तो फुली फिल्ड किहदे च? नियोन दे केस च। एलीमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड एंड फर्स्ट ग्रुप। थर्ड पीरियड का तो पहला ग्रुप आ, तो थर्ड पीरियड हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहला ग्रुप आ तो एक ही होएगा। नेम दी पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, तो सारे ही प्रेजेंट होंगे, प्रोटोन, इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल, सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम 0। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटोन 1, तो न्यूक्लियस 0, न्यूट्रॉन 0 सॉरी। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। तो अज आप इन्ने ही डिस्कस करांगे। इहदा PDF तुहानूं टैलीग्राम ते मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल, थैंक यू। तो कल आप हुण नैक्सट जिहड़े रह गए क्वेश्चन अराउंड 100 के करीब ही होणगे। ठीक है, वो डिस्कस करांगे। आई होप तुहानूं समझ लगा होगा। अगर कोई डाउट होया तो मैनूं तुसीं कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पुछ सकदे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।